Good morning, students. I am Meenakshi Chaube from Government Girls College, Batul. Students, the topic which I am going to take today is common errors. And I have brought some very useful quotations for you. This is a quotation from Leon Brown. Mistakes are the stepping stones to wisdom. We learn from trial and error. We become wise by understanding problems. Second one is, the error of the past is the wisdom and success of the future, Dale E. Turner. And the next one is, no one is exempt from the rule that learning occurs through recognition of errors. Students, errors in English can be of different types. They can be in the use of nouns, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions. And they can also be in the use of articles, verbs, subject-verb agreement, superfluous words, or incorrect words. Students, let us start with errors in the use of nouns. As you know, students, noun is the name of a person, place, or thing. And you know that nouns are of different types. Common noun, proper noun, adjective noun, abstract noun, collective noun, etc. And there are further other divisions of nouns also, countable nouns and uncountable nouns. The nouns which are countable can be made plural by adding s or es to them, and we can put a or an before them. But the nouns that are not countable or uncountable, they cannot be made plural by adding s or es to them, and we cannot put a or an before them. So following nouns are usually uncountable in English. For example, you find on your screen advice, news, information, furniture, luggage, scenery, paper, work, weather, traffic, etc. And countable nouns have plural forms while uncountable nouns do not. We see here some examples. Now you have on your screen some sentences which are incorrect. The sceneries of Kashmir are charming. He has bought costly furnitures. What is wrong in these sentences? The words that you find highlighted here, like scenery and furniture, students, these words belong to uncountable noun, and they cannot be made plural by adding s or es to them. So these are wrong in that way. And again, you find some other sentences here. You gave me an advice. You have given me a good news. Here also, you see the advice, news, paper, information. These words are related to uncountable noun. So we cannot put a or an before them. So because of these reasons, these sentences are incorrect. So what are the correct sentences? The sentences that are correct are, the scenery of Kashmir is charming. Not sceneries, scenery of Kashmir. He has bought costly furniture, not furnitures. You gave me a piece of advice, not a advice or an advice cannot be. You have given me a piece of good news. I want a piece of paper. This is an important piece of information. You cannot say this is an important information, because information, paper, news, advice, these words belong to uncountable noun, and we cannot put a or an before uncountable noun. Now, errors in the use of articles. As you know, all singular countable nouns take an article a, an, or the before them. They must not be used without an article. Now we find here some sentences which are incorrect. I saw white tiger in the garden yesterday. I have book. Cow is a domestic animal. Students, white tiger, or the word tiger belongs to countable noun. So it cannot be used without putting an article before it. The word book cannot be put or cannot be used without putting an article before it.
Cow also belongs to a countable noun. That's why it cannot be used or it cannot be used without an article before it. So the correct sentences would be, I saw a white tiger in the garden. I have a book. The cow is a domestic animal. Cow is representing the class of cow. That's why we have used the here in front of cow. So you find here that any countable noun cannot be used without putting an article before it. The article a is used before the words beginning with the consonant sound. The article an is used before words beginning with the vowel sound. This is important and there is much confusion in students regarding this rule. These sentences are incorrect. He is a MA. He is a NCC officer. What is wrong in these sentences? बच्चों कंफ्यूजन इसलिए होता है कि कुछ पुस्तकों में ऐसा पढ़ लिया जाता है कि अगर शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले अ लगा देंगे और एम जो है वो एक व्यंजन है तो उसके पहले ए लगा दिया, एन जो है व्यंजन है इसके पहले ए लगा दिया। लेकिन सही नियम ये नहीं है। सही नियम जो है वह उच्चारण से संबंधित है। शब्द का उच्चारण किससे हो रहा है? जो ध्वनि आ रही है वो स्वर की है या व्यंजन की है। जैसे एम ए, एम जब हम बोलते हैं तो जो पहली ध्वनि आती है वो ए है जो कि एक स्वर की ध्वनि है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग ना होकर एन का प्रयोग होना चाहिए। ही इज ए एनसीसी ऑफिसर, इसलिए ये गलत है क्योंकि हम जब एन कहते हैं तो स्वर जो हमारा जो ध्वनि निकल रही है वो ए की निकल रही है और ए एक स्वर है, इसलिए इसके पहले एनसीसी, इसके पहले ए का प्रयोग न होकर एन का प्रयोग होना चाहिए। अब देखते हैं ए ऑनेस्ट मैन, ये गलत क्यों है? यहाँ भी शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? एच से, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। अगर हम इस नियम को ध्यान रखते कि कॉन्सोनेंट से शब्द शुरू हो रहा है और हम इसके सामने ए लगा दें तो गलत हो जाता, इसलिए क्योंकि सही नियम यह है कि उच्चारण महत्वपूर्ण है। शब्द के पहले जो पहला शब्द का पहला अक्षर है वो स्वर है या व्यंजन है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका उच्चारण स्वर से हो रहा है या व्यंजन से हो रहा है। यहाँ आप देखें कि ऑनेस्ट जब बोलते हैं तो एच साइलेंट है और स्वर किस तरह सामने आता है? ऑनेस्ट, अ स्वर सामने आ रहा है, इसलिए इसके पहले ए न लगाकर एन लगाएंगे। She has been waiting for me for AR, यहाँ भी H से शुरू है, व्यंजन से शुरू है, लेकिन उच्चारण क्या है? R, इसलिए यहाँ पर भी A की जगह N का प्रयोग होता। अब he gave her an 1 rupees, ये भी गलत हो गया। शुरुआत किससे है? O से है। हम कहेंगे कि IOU में से O है ये, तो इसके पहले हम यहाँ पर एन लगा देते हैं, लेकिन उच्चारण वन का किससे हो रहा है? व से हो रहा है। व जो ध्वनि है वो व्यंजन की है, इसलिए ए 1 रुपी नोट होना था। ऐसे ही यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आप यू देख रहे हैं जो कि शुरुआत जो है स्वर से है, लेकिन उच्चारण यूनिवर्सिटी का य से हो रहा है जो कि एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर एन यूनिवर्सिटी की जगह पर ए यूनिवर्सिटी होना चाहिए था। अब सही सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं। He is an MA, he is an NCC officer, an honest man values honesty above everything. She has been waiting for me for an hour. He gave her a 1 rupee note. A university degree is no guarantee for a job. The definite article the is used before the names of certain books. जैसे कुछ किताबें हैं लाइक गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान, उनके पहले द का प्रयोग होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, अपनी तरह की यूनिक चीजों के सामने, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा इत्यादि शब्दों के पहले द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, with ordinals like first, second, before musical instruments like harmonium, flute, etc., before superlative like the best, the most, etc. यहाँ देखें, these sentences are incorrect. रावण is an epic of India. अब ये गलत क्यों हुआ? Because रामायण being a unique book, a very important book, इसके पहले हमको
द का प्रयोग करना था। सैटरडे इज द 7th डे ऑफ वीक। अब 7th यहाँ पर एक ऑर्डिनल है, उसके पहले हमको द लगाना था। मून बीइंग अ यूनिक थिंग ऑफ इट्स काइंड, यहाँ पर द मून का प्रयोग होना था। आई कैन प्ले अ फ्लूट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का प्रयोग करते हैं। ही इज ए बेस्ट बॉय, ये गलत क्यों है? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। ही प्लेज द क्रिकेट, यहाँ पर गलत इसलिए है क्योंकि जो गेम्स हैं उनके सामने द का प्रयोग नहीं होता है। अब सही सेंटेंसेस यहाँ पर है। द रामायण इज एन एपिक ऑफ इंडिया, सैटरडे इज द 7th डे ऑफ वीक, द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन, आई कैन प्ले द फ्लूट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द, ही इज द बेस्ट बॉय, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द, ही प्लेज क्रिकेट, गेम्स के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया यहाँ पर और नहीं करना चाहिए। The article is omitted before names of substances, abstract nouns, that is uncountable nouns used in general sense. अब यहाँ देखें, the water is colorless, ये सभी sentences गलत हैं। Water, butter, gold, ये सब uncountable nouns हैं, ये सब material noun है। इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग, द आर्टिकल का प्रयोग या ए का प्रयोग नहीं करते हैं। Honesty abstract noun है, इसके पहले भी द ऑनेस्टी इस तरह से इसका प्रयोग नहीं हो सकता। तो सही सेंटेंसेस क्या होंगे? वाटर इज कलरलेस, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द व्हेन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। अभी हमने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे कि अभी हम देख रहे थे, उनके पहले हमने द का प्रयोग नहीं किया था, वाटर के पहले, मिल्क के पहले। लेकिन अगर उनको किसी विशेष अर्थ में प्रयोग करना हो तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द मिल्क इन द जग, कौन सा मिल्क? जो कि जग में है, एक विशेष मिल्क जो कि जग में रखा हुआ है। किसी विशेष पर्टिकुलर मिल्क की हम जब बात कर रहे हैं तो उसके सामने द का प्रयोग हो गया। द वाटर इन द बॉटल इज नॉट फ्रेश, कौन सा पानी जो बॉटल में रखा है वो फ्रेश नहीं है। तो यहाँ पर मिल्क और वाटर मटेरियल नाउन होने के बाद भी, अनकाउंटेबल नाउन होने के बाद भी इसके पहले यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। The definite article the is omitted before the nouns schools, college, university, church, hospital, prison, market, bed, when these places are visited for their primary purposes. जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह में उनके मुख्य उद्देश्य के लिए जाया जाता है उस समय उनके पहले द नहीं लगता। इन शब्दों के प्रयोग की बच्चों बार बार आपको आवश्यकता पड़ती है। तो जब स्कूल में पढ़ने के लिए कोई जा रहा है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहा है, तब जो वाक्य बनेगा उसमें द नहीं लगाएंगे। चर्च में पूजा के लिए जा रहे हैं तो द नहीं लगेगा। हॉस्पिटल में इलाज के लिए जा रहे हैं, प्रिजन में कोई कन्विक्ट, कोई अपराधी जा रहा है, मार्केट में मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, बेड सोने के लिए जा रहे हैं, तो फिर उसके सामने द का प्रयोग नहीं होगा। कैसे देखते हैं हम इसमें यहाँ भी आगे। माई सन गोज टू द स्कूल, ये सारी सेंटेंसेस जितने भी आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। माई सन गोज टू द सन की स्कूल की जगह पर माई सन गोज टू स्कूल होना था। माई फादर इज इल, ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, फादर इल है, वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए द हॉस्पिटल सही नहीं है। द कन्विक्ट हैज बीन सेंट टू द प्रिजन, अपराधी को जेल में भेजा गया है। यहाँ भी ये जो जेल में प्राइमरी उद्देश्य के लिए कन्विक्ट गया है, तो इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग अलग है। यू विल हैव टू गो टू द कोर्ट टू सेटल द डिस्प्यूट, यहाँ भी कोर्ट के पहले द नहीं होना था। वी गो टू द चर्च ऑन संडेज, हम संडेज को चर्च में पूजा के लिए जाते हैं, तो यहाँ भी द का प्रयोग चर्च के पहले गलत है। और सही सेंटेंसेस होंगे, इसको हमेशा याद रखिएगा। जब आप एप्लीकेशन वगैरह भी लिखते हैं बच्चों, तो हमेशा स्कूल, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में अपने प्राइमरी पर्पस के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं इन सब जगहों पर, तो फिर उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो अब ये सही सेंटेंसेस आपके सामने है। माई सन गोज टू स्कूल, माई फादर इज इल, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, the convict has been sent to prison, you will have to go to court to settle the dispute, he met me at the church. यहाँ आप देखें, he met me at the church, यहाँ पूजा की बात नहीं, वो मुझे मिला था, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है।
बट वी से आई एम गोइंग टू द स्कूल टू इंक्वायर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ माई सन। अब आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर द के पहले, स्कूल के पहले द का प्रयोग, प्रिजन के पहले द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अब पहले सेंटेंस में देखें कि यहाँ स्कूल में क्यों जा रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। आई एम गोइंग टू द स्कूल टू इंक्वायर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ माई सन। मैं स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, मैं अपने बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर स्कूल के पहले द का प्रयोग हुआ। दूसरा सेंटेंस, शैल वी गो टू द प्रिजन एंड गेट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिजनर्स कंडीशन देयर। क्या हम प्रिजन में जाएं और वहां पर प्रिजनर्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको पता करें। तो यहाँ पर प्रिजन में कोई अपराधी के रूप में नहीं जा रहा है, बल्कि प्रिजनर्स की कंडीशन को पता करने के लिए जा रहा है। मतलब जिसका प्राइमरी जो उद्देश्य है उसके लिए वहां पर नहीं जाया जा रहा, इसलिए यहाँ पर प्रिजन के पहले द का प्रयोग हुआ है। और सामान्यतः प्रिजन, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एक्सेट्रा इनके सामने द का प्रयोग नहीं होता अगर हम वहां पर उनके प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे होते हैं। अब कैपिटल लेटर्स के प्रयोग में भी बहुत सारी गलतियां बच्चों होती हैं। जैसे कैपिटल लेटर्स का प्रयोग आपने बहुत बार पढ़ा है, फिर भी एक बार हम लोग देखेंगे। टू बिगिन अ सेंटेंस, टू बिगिन ईच न्यू लाइन ऑफ पोएट्री, and capital letters are used to begin all proper nouns and adjectives derived from them as India, Indian, India एक adjective है, India proper noun है और Indian उसका adjective है, Shakespeare proper noun और उसका adjective Shakespearean। To write the pronoun I हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, and the interjection O भी जो लिखना है इंटरजेक्शन के रूप में, उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। अब आप इनको जान के बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इस सेंटेंसेस क्यों गलत हैं। राधा comes from कानपुर, but I come from वाराणसी। कानपुर is a proper noun and it should have been with a capital letter। कानपुर को के जो है वो कैपिटल होना था, बट आई जो है वो भी हमेशा कैपिटल लेटर में आता है। आई डोंट स्पीक संस्कृत बट आई कैन स्पीक अ लिटिल इंग्लिश। जो भाषा है, कोई सब्जेक्ट है, भाषा है, उसके लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश स्मॉल की जगह पर कैपिटल होना था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, ये जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत में जो पहला शब्द होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ भी इसलिए गलत है। ही बॉट अ न्यू बाइसिकल, बाइसिकल एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के लिए हमको स्मॉल लेटर का प्रयोग करना था, तो ये इसलिए गलत है। यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में गलतियां हुई है। अब सही सेंटेंसेस आपके सामने हैं। यहाँ पर कानपुर में के कैपिटल किया, आई कैपिटल हुआ, वहाँ इंग्लिश का ई कैपिटल हुआ, वेयर का डब्ल्यू कैपिटल किया, बाइसिकल का बी स्मॉल कर दिया, तो ये सेंटेंसेस सही हो गए। अब एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउंस, यहाँ एग्जाम्पल देखिए। वन शुड हेल्प हिज फ्रेंड इन डिफिकल्टी, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वन, तो इसके लिए इसके साथ में जो दूसरा शब्द लगेगा तो वह हिज नहीं हो सकता। वन शुड हेल्प वंस फ्रेंड इन डिफिकल्टी, पहला सेंटेंस गलत हो गया। ही शुड हेल्प हिज फ्रेंड, I should help my friend, etc. इस तरह से होना था। These two friends help one another, ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि these two friends, ये दो friends हैं, इसके लिए दो के लिए हमें each other का प्रयोग करना था। These two friends help each other। अब देखिए बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, अब यहाँ देखेंगे। He has a dog, I like its color, I think it's time to discuss this question। ये देखना है कि इट्स, जिसमें पहले सेंटेंस में जो इट्स है जिसमें अपॉस्ट्रोफी लगी है, ये इसको अगर ये तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसको हम अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में करें तो ये हो जाएगा इट इज। असलियत में शब्द है इट इज, तो अगर हम इट इज लिख के यहाँ पर देखें तो क्या ये सेंटेंस सही होता है। आई लाइक इट इज कलर, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं हम, आई थिंक इट्स टाइम टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, होना क्या था, आई थिंक इट इज, और इट इज कौन सा शब्द है जिसमें अपॉस्ट्रोफी लगी है, वो इट इज है। तो यहाँ पर और जो इट्स है बिना अपॉस्ट्रोफी का वो क्या है, वो पॉजिटिव फॉर्म है। तो इसलिए जो सही सेंटेंसेस होंगे, ही हैज अ डॉग, आई लाइक इट्स कलर, जो कि पॉजिटिव फॉर्म है। आई थिंक इट्स टाइम, ये इट्स क्या है, इट इज टाइम टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। आप देखिए नीचे, इट्स मतलब इट इज और इट्स जो है पॉजिटिव फॉर्म। आपने देखा होगा कि आपको बताया गया है कि जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें नीचे लिखते हैं योर्स, तो उसमें अपॉस्ट्रोफी लगाने के लिए मना किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, यही है कि जो योर्स जिसमें अपॉस्ट्रोफी लगी है वो एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है,
किसकी? योर इज की। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि योर इज फेथफुली, हम क्या कहना चाहते हैं? योर्स फेथफुली। और पॉजेसिव फॉर्म कौन सी है? जो नीचे लिखी है, योर्स पॉजेसिव फॉर्म है। और योर्स क्या है? ये एक कंट्रैक्टेड फॉर्म है। कौन से दो वर्ड्स की? योर इज की। तो इसलिए बच्चों कभी भी जब आप एप्लीकेशन में योर्स लिखते हैं तो अपॉस्ट्रोफी न लगाएं, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी क्या है? उसको संकुचित बना दिया गया है दो वर्ड्स को। योर इज को संकुचित करके अपॉस्ट्रोफी लगा के योर्स बना दिया गया। और हम क्या कहना चाहते हैं? आपका फेथफुली, योर्स फेथफुली, आपका विश्वास पात्र। तो यहाँ पर योर्स जो नीचे वाला है बिना अपॉस्ट्रोफी का, वो पॉजेसिव फॉर्म है, वही सही है। और योर्स जिसमें अपॉस्ट्रोफी लगी है उसका फुल फॉर्म होगा योर इज, इसलिए वो गलत है। Neither the six could succeed. None of the six could succeed. इसमें पहला वाला सेंटेंस गलत है। जब हम दो की तुलना कर रहे होते हैं तो फिर आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं, और दो से ज्यादा चीजों की जब बात हम कर रहे हैं तो फिर नन का प्रयोग होता है। आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, और हमने ऊपर सिक्स के साथ में नाइदर का प्रयोग कर दिया जो कि गलत था। अब देखिए और कुछ एग्जाम्पल्स। I and you came to his rescue. I, you and he were present in the hall. क्या गलती है इसमें बच्चों? मेन इसमें रीजन ये है कि शिष्टाचार का तकाजा है कि जब हम अपनी एक सामने वाले की बात कर रहे हैं, दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो पहले हम सामने वाले को तरहीज देंगे और फिर अपनी बात करेंगे। तो पहला सेंटेंस जो I and you है उसकी जगह पर होना था you and I। और अगर हम तीन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिसमें एक सामने वाला यू है और एक तीसरा थर्ड पर्सन ही है और एक हम हैं, तो शिष्टाचार का तकाजा ये है कि जो सामने वाला है उसको पहले हम तरहीज देंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन ही को, और उसके बाद स्वयं अपने आप को सबसे बाद में रखना है। इसलिए इस तरह जब भी आपको प्रोनाउंस लिखने पड़ते हैं तो पहले यू, फिर दूसरा कोई व्यक्ति अगर है ही, उसके बाद सबसे आखिर में अपने को लिखना है आई। इसलिए जो सही सेंटेंस है यू, ही एंड आई वर प्रेजेंट इन द हॉल। देखिए, गुड मैनर्स रिक्वायर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। यू एंड आई, ये सही है, एंड नॉट आई एंड यू। पहले मैं नहीं, पहले आप। यू एंड ही होना चाहिए, नॉट ही एंड यू। पहले आप फिर कोई दूसरा, जो सामने है वो ज्यादा, उसको ज्यादा तरहीज देनी है। राम एंड आई होना चाहिए, नॉट आई, मैं पहले राम बाद में, ऐसा नहीं, मैं सबसे आखिर में। ही एंड आई, नॉट आई एंड ही। एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। माई सिस्टर इज ओल्डर देन मी, ये गलत हो गया। माई फ्रेंड सुनीता इज एल्डर देन मी, ये भी गलत है। क्यों? माई सिस्टर इज एल्डर देन मी। जब एक ही परिवार के सदस्यों की बात हो रही है तो उसमें एल्डर का प्रयोग करना है, और अगर अपने परिवार से अलग किसी व्यक्ति से तुलना हो रही है तो फिर ओल्डर का प्रयोग करना है। देखिए, एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। इसीलिए जब माय सिस्टर की बात कर रहे हैं, हम अपने परिवार की बात कर रहे हैं, तो ओल्डर न लगाकर एल्डर का प्रयोग करेंगे, और अगर परिवार के बाहर की बात करनी है तो फिर ओल्डर का प्रयोग होगा। This question is the easiest of the two. Apples are sweeter than oranges. These sentences again are incorrect. अब हम देखते हैं कि जब दो की तुलना हो तो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होना था, और यहाँ पर द इजीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो गया। फिर एप्पल्स आर स्वीटेस्ट दैन ऑरेंजेस, यहाँ दो प्रकार के फलों की बात हो रही है, एप्पल्स और ऑरेंजेस की, तो यहाँ पर भी कंपेरेटिव डिग्री की जगह पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो गया। और सही आंसर है इसका, सही जो सेंटेंस है, दिस क्वेश्चन इज द इजियर ऑफ द टू। दो की तुलना में कंपेरेटिव डिग्री, एप्पल्स आर स्वीटर देन ऑरेंजेस, दो प्रकार के फलों की तुलना हो रही है तो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होना था। The comparative degree of an adjective is used when two things or sets of things are compared. अब देखें, little, a little, the little, these are adjectives, और इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है और मैं चाहूंगी आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दें।
लिटिल का मतलब क्या है? नॉट मच, हार्डली एनी और नेगेटिव, मतलब न के बराबर। लिटिल जब कहेंगे इसका मतलब न के बराबर। अ लिटिल का मतलब सम, कुछ थोड़े से, पॉजिटिव मीनिंग। द लिटिल का मतलब नॉट मच बट ऑल देयर इज। द लिटिल का मतलब थोड़े, थोड़ा, लेकिन जितना भी है उतना सब। देखिए यहाँ पर ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर अ मदर। लिटिल जब हम सिर्फ उसके पहले ए भी नहीं लगा रहे, द भी नहीं लगा रहे, इसका मतलब उसका नेगेटिव मीनिंग है, मतलब नाम मात्र के लिए। ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर अ मदर, उसने अपनी माँ की बहुत थोड़ी सी, यानी कि न के बराबर चिंता दिखाई। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यहाँ लिटिल का सही जो प्रयोग है कि थोड़ी नॉलेज। अ लिटिल माने थोड़ी नॉलेज। और द लिटिल अमाउंट ही हैड वाज नॉट सफिशिएंट, इसका मतलब द लिटिल का मतलब जितना भी था उतना पूरा। अब देखिए यहाँ पर कि किस तरह से गलती हो जाती है। आई हैव लिटिल शुगर, आई कैन गिव यू ओनली 2 किलोज। देखिए लिटिल का मतलब नेगेटिव है, मतलब न के बराबर। तो अगर मेरे पास में न के बराबर शुगर है तो मैं फिर तुमको 2 किलो कैसे दे सकता हूँ? एज आई हैव लिटिल शुगर आई कैन गिव यू ओनली 2 किलोज, इसीलिए गलत है। हमको क्या कहना है कि थोड़ी सी शुगर है तो कहना है एज आई हैव अ लिटिल शुगर आई कैन गिव यू ओनली 2 किलोज। तो लिटिल का मतलब जो है वो है न के बराबर, नेगेटिव सेंस है इसमें। और अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा, और द लिटिल का मतलब क्या है कि थोड़ा सा लेकिन जो भी है वो पूरा। अब देखिए आई हैव फ्यू मनी, ये सेंटेंस गलत है। आई हैव अ लिटिल बुक्स, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि फ्यू का प्रयोग होगा काउंटेबल नाउन्स के लिए और लिटिल का प्रयोग होगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके सामने हम उसके साथ फ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते। और बुक्स जो है वो काउंटेबल है, इसलिए उसके साथ में ए का, यहाँ पर ए लिटिल का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो सही सेंटेंसेस होंगे आई हैव लिटिल मनी, आई हैव अ फ्यू बुक्स। अब देखिए few and a few refer to countable nouns and are used with plural nouns, and latter little and a little refer to uncountable nouns and are used with singular nouns. Little और a little जो है क्योंकि वो uncountable noun को का संकेत करते हैं, इसलिए उनको singular form में साथ में यूज करना है। अब देखिए कंपैरिजन में किस प्रकार की बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, ये आप देखें। The climate of India is hotter than England. The streets of Karachi are wider than Mumbai. The population of London is greater than any city in India. यहाँ कंपैरिजन करना है, लेकिन कितना गलत सेंटेंसेस ये हो गए हैं। हम तुलना किसकी करना चाहते हैं? क्लाइमेट ऑफ इंडिया की इंग्लैंड के क्लाइमेट से। और यहाँ तुलना किसकी हो रही है? इंडिया के क्लाइमेट की। हम इंग्लैंड से, पूरे इंग्लैंड से हम उसकी तुलना कर दे रहे हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड, ये नहीं कह रहे द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड। दूसरे में द स्ट्रीट्स ऑफ कराची आर वाइडर देन मुंबई, इसमें गलत क्या हो जा रहा है? कराची के स्ट्रीट्स की तुलना हम मुंबई की स्ट्रीट से करने की बजाय हम पूरे मुंबई से कर रहे हैं। अब स्ट्रीट ऑफ कराची आर वाइडर देन मुंबई, कराची की स्ट्रीट्स पूरे मुंबई से चौड़ी कैसे हो सकती हैं? तो ये गलत हो गया। पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज ग्रेटर देन एनी सिटी इन इंडिया, अब लंदन की पॉपुलेशन की तुलना हम भारत के किसी भी शहर से कर रहे हैं, किसी शहर की पॉपुलेशन से नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए सारे के सारे सेंटेंसेस गलत हो गए। अब ये सही सेंटेंसेस कैसे बन सकते हैं? द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर दैन दैट ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के क्लाइमेट से। द स्ट्रीट्स ऑफ कराची आर वाइडर दैन मुंबई, नहीं, दैन दैट ऑफ मुंबई। द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी सिटी इन इंडिया। इस तरह से हमको इसका प्रयोग करना चाहिए, तब जाके कंपैरिजन सही होता है। अब हम देखेंगे एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब्स। लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। इसमें बहुत गलतियां होती है बच्चों। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द नेचर, ऐसे हम देखते हैं लिटरेचर के स्टूडेंट्स अक्सर यही लिख देते हैं, डिस्क्राइब्स अबाउट। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स, शी रिक्वेस्टेड फॉर माई हेल्प। यहाँ गलतियां हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब में प्रीपोजिशंस लगे हुए हैं, वो नहीं लगने थे। सही सेंटेंसेस हो रहे हैं। लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम। द पोएट डिस्क्राइब्स द नेचर। आई हैव ऑर्डर्ड 3 कप्स ऑफ कॉफी, शी रिक्वेस्टेड माई हेल्प। यहाँ देखिए द वर्ब डिस्कस, डिस्क्राइब, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट आर ट्रांजिटिव वर्ब। ये सब ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, दे आर नॉट यूज्ड विद अ प्रीपोजिशन। उनके साथ में प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करना। और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है? A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object. Transitive verb वो होता है जिसमें कि
उसका जो एक्शन है वो उस ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे डिस्कस, जो डूअर जो डिस्कस का कार्य है वो प्रॉब्लम पर ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हम कहते हैं आई लाफ, तो ये जो लाफ है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। और अगर हम कहते हैं आई ईट अ मैंगो, तो मैं क्या खा रहा हूँ? मैंगो खा रहा हूँ, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आइदर मीरा और राधा आर कमिंग, नाइदर वीना नॉर विमल लिव हियर, ये सब गलत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे देखिए आप, ये फॉर्म ऑफ वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू द वर्ब। यहाँ पर जब हम दो चीजों की, सिंगुलर चीजों की तुलना कर रहे हैं, जैसे मीरा और राधा, आइदर के साथ में इनका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो वर्ब है सिंगुलर होना था, आइदर मीरा और राधा, या तो मीरा या राधा इज कम, आइदर मीरा और राधा इज कमिंग, नाइदर वीना नॉर विमल लिव्स हियर। जब दो सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उनके साथ में नाइदर का प्रयोग होगा, तो फिर जो सब्जेक्ट होगा वो जो वर्ब बनेगा वो सिंगुलर होगा। अब देखिए नीचे में, अजय, नाइदर अजय नॉर माय फ्रेंड्स कम्स हियर, यहाँ आप देख रहे हैं अजय सिंगुलर है और माय फ्रेंड्स प्लूरल है। जब एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो जो बाद वाला है जो कि सामान्यतः जो प्लूरल है उसे बाद में लिख दिया जाता है, और जो प्लूरल है लास्ट वाला उसके साथ में उसके अकॉर्डिंगली वर्ब का प्रयोग होता है। तो जो वर्ब है उसके साथ में जो भी नाउन लगा हुआ है उसके अनुसार हम यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब लास्ट में यहाँ आप देख रहे हैं फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर कम्स नहीं होना था, कम होना था। और विमल और वीना, यहाँ पर बीच में दोनों में और आइदर और नाइदर नॉर का जब भी प्रयोग दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में करते हैं, तो फिर वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आइदर और नाइदर नॉर, जब सिंगुलर इसके साथ में दो सब्जेक्ट्स हैं तो सिंगुलर का एक प्लूरल एक सिंगुलर है, तो लास्ट में प्लूरल और उसके साथ में जो वर्ब होगा वो प्लूरल के अकॉर्डिंग होगा। अब एरर्स इन टेंसेस आप देखें, आई हैव गॉन टू दिल्ली इन 2010, गलत क्यों है? आई हैव गॉन, ये हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट, और आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी समय का उल्लेख नहीं होता। अब यहाँ पर 2010 जब दिया है तो इसको फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं हो सकता, तो सही सेंटेंस होगा आई वेंट टू दिल्ली इन 2010। शी इज सिंगिंग फॉर एन आवर, अब वो गाना गा रही है 1 घंटे से। अगर कार्य पहले से प्रारंभ हुआ और वर्तमान में चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए था, तो सही है शी हैज बीन सिंगिंग फॉर एन आवर। शी डिडंट वेंट देयर, आप देख रहे हैं जब डिडंट का प्रयोग हुआ है तो फिर वेंट का प्रयोग कैसे हो सकता है? शी डिडंट गो देयर। अब देखें ही ऑलरेडी गेव मी अ बुक, ऑलरेडी जस्ट वगैरह का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, तो यहाँ पर गेव और केव गलत है। आई हैव सीन द ताज, इसमें फिर वही गलती है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें समय का उल्लेख 1990 का कैसे हो गया? सही सेंटेंसेस बनेंगे ही हैज ऑलरेडी गिवन मी अ बुक, गेव की जगह गिवन। दे हैव जस्ट कम हियर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई सॉ द ताज इन 1990, समय का उल्लेख, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट न होके पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग यहाँ पर हुआ। अब देखिए, अ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज मे बी फॉलोड बाय एनी टेंस रिक्वायर्ड बाय द सेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें बच्चे। ही सेज, आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज है पहले के 3 सेंटेंसेस का वो प्रेजेंट में है, ही सेज प्रेजेंट टेंस आप दिख रहे हैं, और बाद के जो 3 है उसमें ही विल से, ये तीनों ही जो हैं ये फ्यूचर टेंस के हैं। तो जब भी कभी वाक्यों के शुरुआत में जो मेन क्लॉज है वो अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर होता है तो उसके बाद का जो क्लॉज है वो किसी भी टेंस का हो सकता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पहले के 3 सेंटेंसेस में पहले में शी सिंग्स अ सॉन्ग प्रेजेंट टेंस, शी sang अ सॉन्ग वो भी ठीक है, शी विल सिंग अ सॉन्ग ये भी ठीक है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तो फिर उसके बाद के जो क्लॉजेज हैं वो किसी भी टेंस के हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो भी उसके बाद के जितने भी क्लॉजेस हैं वो भी किसी भी टेंसेस में हो सकते हैं। लेकिन अगर जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट में है तब क्या होगा? तब ऐसा नहीं हो सकता कि बाद के क्लॉजेस जो हैं वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो जाए। सिर्फ उस कंडीशन में अगर उसमें कोई सार्वभौमिक सत्य बताया गया होगा तो प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट
सेंटेंस पास्ट का टेंस रहने के बाद भी उसे हम लास्ट बाद के जो क्लॉज है उसे हम प्रेजेंट में कर सकते हैं। अदरवाइज अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस का है तो फिर हमें उसके बाद वाला जो क्लॉज है उसे पास्ट में ही रखना होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ही सेड दैट ही विल कम। मेन जो क्लॉज है पहले ही सेड प्रिंसिपल क्लॉज वो पास्ट में है तो इसलिए ही विल नहीं हो सकता, उसकी जगह पर वुड करना पड़ेगा। शी थॉट दैट शी कैन विन, जब शी थॉट है तो कैन की जगह वुड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ ही सेड दैट द सन रोज, अब ये गलत हो गया। सेड है पास्ट, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है और यहाँ पर रोज गलत क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि जो बात का क्लॉज है उसमें एक सार्वभौमिक सत्य की बात कही गई है। सार्वभौमिक सत्य कोई इडियम फ्रेज, कोई यूनिवर्सल फैक्ट वगैरह जब रहता है तो हम जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट रहने के बाद भी बाद के क्लॉज में हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस से रिलेटेड है तो फिर जो बाद का क्लॉज है उसे पास्ट टेंस में ही रहना होगा। इसलिए आप एग्जांपल्स नीचे देखिए, सही है सेंटेंसेस। ही सेड दैट ही वुड कम सून, शी थॉट दैट शी कुड विन द प्राइज, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब्स, कभी हम एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब और एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव लगा देते हैं। जैसे आई डिड गुड ऑन द टेस्ट, यहाँ पर क्या है कि मैंने गुड लगा, यहाँ पर गुड लगा दिया, किसके लिए? यहाँ पर होना चाहिए था एडवर्ब और उसकी जगह एडजेक्टिव लगा दिया। हाउ गुड डू यू स्पीक, आप कैसे बोलते, कितना अच्छा बोलते हैं। स्पीक वर्ब है, उसके साथ एडवर्ब लिखना था जो कि गुड एडजेक्टिव लगा दिया। आई थिंक ही इज अ वेल पब्लिक स्पीकर, पब्लिक स्पीकर के लिए हमको एक एडजेक्टिव चाहिए था और हमने वहां पर वेल एक एडवर्ब लगा दिया। तो यहाँ पर गलती जो हुई है वो एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब और एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव की गलती है। सही सेंटेंसेस होंगे आई डिड वेल, वेल एडवर्ब है। हाउ वेल डू यू स्पीक, ये भी एडवर्ब है। आई थिंक ही इज अ गुड, गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है। तो जहाँ एडजेक्टिव का प्रयोग होना है वहाँ एडजेक्टिव का करना है और जहाँ एडवर्ब का है वहाँ एडवर्ब का प्रयोग करना है। अब देखिए, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2014, ये गलत क्यों है? ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 years। सिंस और फॉर के प्रयोग में भी बच्चों बहुत गलती होती है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे अगर हमें लिखना है कि सिंस, हम लिखते हैं सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मार्च, सिंस 2010, ये सही है। और जब फॉर का प्रयोग करना है तो फॉर 2 days, फॉर 2 hours, फॉर 2 years, फॉर 2 months एक्सेट्रा। तो अवधि का बोध कराने के लिए फॉर का प्रयोग और पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय का बोध कराने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ एरर्स इन द यूज ऑफ प्रपोजिशंस। शी इज मैरिड विद अ डेंटिस्ट, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ऑल ऑफ देम आर इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ the incorrect use of prepositions. She jumped in the river. I do not agree with you. My wife is good in French. He is desirous for joining the army. गलत prepositions और सही prepositions क्या है? She is married to, not with. She jumped into, not to. I do not agree to your proposal, not with your proposal. My wife is good at French, not in French. He is desirous of, not for, joining the army. Errors in the order of words. अगर वर्ड्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तो कितनी बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। यहाँ आप देखिए, I saw a dead horse walking across the field. मैंने एक डेड हॉर्स को देखा जो कि फील्ड में वॉक कर रहा था। सोचिए, he shot himself dead after bidding his wife goodbye with a gun. उसने अपने आप को डेड, शॉट डेड किया, मतलब गोली मार ली अपनी पत्नी को गन से गुड बाय करके। होना क्या था? ही शॉट हिमसेल्फ डेड विद अ गन आफ्टर बिडिंग हिज वाइफ गुड बाय। ही गेव अ स्टूल टू द सर्वेंट दैट हैड 4 legs। अब गलत जगहों पर शब्दों का प्रयोग से कितनी बड़ी गलती हो रही है। ही गेव अ स्टूल टू द सर्वेंट दैट हैड 4 legs। स्टूल के 4 legs बताना चाहते थे और बता दिया कि सर्वेंट के 4 legs हैं। होना क्या था? ही गेव अ स्टूल that had 4 legs to the servant. A gentleman has a dog to sell who wishes to go abroad. कौन जाना चाहता है abroad? ऐसे लगता है इसको देख के जैसे कि डॉग जाना चाहता है। A gentleman has a dog to sell who wishes to go abroad. Walking across the field, I saw a dead horse. Okay.
आफ्टर ब्रीडिंग, इसमें भी जैसे अभी आपने पहले देखा उसी प्रकार की गलतियां यहाँ पर हो रही हैं। अब हम थोड़े से और बातें देखेंगे। एरर्स इन द यूज ऑफ पार्टिसिपल विदाउट एग्रीमेंट। वेटिंग फॉर अ टैक्सी, अ लिजर्ड फेल ऑन हिज हेड। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि लिजर्ड के पहले वेटिंग फॉर अ टैक्सी लगा दिया कि जैसे लिजर्ड जो है वो टैक्सी का इंतजार कर रही है। बीइंग अ हॉट डे आई रिमेन एज इफ आई एम अ हॉट डे। सिटिंग ऑन द गेट, अ स्कॉर्पियन एज इफ द स्कॉर्पियन इज सिटिंग ऑन द गेट। ये सब चीजें गलत हो रही है। होना कैसे था? एज ही वॉज वेटिंग फॉर अ टैक्सी, अ लिजर्ड फेल ऑन हिज हेड। एज ही वॉज वेरी हॉट डे, as it was a very hot day, I remained in my tent. While he was sitting on the gate, a scorpion stung him. Errors in subject verb agreement. जैसे the number of people are, यहाँ पर subject क्या है? The number, इसके साथ में is होना था। Each of them were happy, यहाँ पर was होना था। Everyone के साथ में भी singular verb। One of the boys has होना था, यहाँ पर ये गलत आपने देखा। Errors in subject verb agreement, जैसे English as well as Latin are taught, ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि जब हम दो singular words joined to a singular subject by with as well as etc are put in the singular, वो शब्द जिन्हें के हम singular subject के साथ में जोड़ते हैं तो हम हमेशा उनके साथ में जो subject हमारा singular है तो हम उसके साथ में जो verb है वो singular ही प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे English as well as Latin आर टॉट की जगह इज टॉट, एज वेल एज से क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तो सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर इंग्लिश है उसके साथ में इसका ही प्रयोग करेंगे। द बस विद इट्स पैसेंजर्स, भले ही यहाँ पर पैसेंजर्स प्लूरल है लेकिन चूंकि विद से इसको जोड़ा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पर द बस विद इट्स पैसेंजर वॉज लॉस्ट। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एज वेल एज से कोई चीज जोड़ रहे हैं या फिर विद से जोड़ रहे हैं तो जिस चीज को हम जोड़ रहे हैं वो प्लूरल ही क्यों ना हो लेकिन उसके साथ में जो वर्ब है वो सिंगुलर ही प्रयोग होगा। इसलिए इंग्लिश एज वेल एज लैटिन इज टॉट हियर। द बस विद इट्स पैसेंजर्स वाज लॉस्ट। कुछ वर्ड्स बहुत जल्दी, टाइम खत्म हो गया है तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि कभी सुपरफ्लुअस वर्ड्स मतलब जिनकी जरूरत नहीं है उनको हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं। ही इज माय कजिन ब्रदर। कजिन का मतलब ही है चचेरा भाई या बहन, तो फिर कजिन ब्रदर क्यों? कजिन सिर्फ। सपोज इफ, सपोज और इफ दोनों में से एक का प्रयोग होना था। दिस इज अ मोर सेफर, यहाँ पर सेफर ही बात कह दे रहा है कि ज्यादा सेफ, तो फिर मोर की आवश्यकता नहीं है। ही इज कंपेरेटिवली बेटर, तो यहाँ बेटर ही बता रहा है कि कंपेरेटिवली गुड है। ही कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक, ये भी इस तरह की गलतियां होती है। ब्लंडर का मतलब ही बहुत बड़ी मिस्टेक है तो साथ में मिस्टेक की जरूरत नहीं है। अविनाश विल पास इन का प्रयोग नहीं हुआ था। पास द एग्जामिनेशन। शी रीच टू माई होम, रीच के बाद में टू की आवश्यकता नहीं थी। अब कुछ और शब्द हैं जैसे लेक्चरशिप, ये गलत है। लेक्चरशिप चाइल्डिश जो है नेगेटिव इसका मीनिंग होता है। आई लाइक योर चाइल्डिश की जगह आई लाइक योर चाइल्ड लाइक नेचर। शेक्सपियर वॉज एन इमेजिनरी पोइट। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, माने कि वो तो है ही नहीं, कल्पना में ही शेक्सपियर है, जबकि हम कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर वॉज एन इमेजिनेटिव पोइट, कल्पनाशील पोइट है। अ पीस ऑफ वुड इज स्विमिंग, यहाँ पर स्विमिंग जब स्विम वर्ड है उसमें प्रयास निहित है और अगर वुड का पीस स्विम कर रहा है मतलब अगर तैर रहा है तो यहाँ पर फ्लोट होना चाहिए। फ्लोट जब वो जो वर्ब है उसमें प्रयास की आवश्यकता नहीं है, स्विम में प्रयास की आवश्यकता होती है। अब कुछ और बस लास्ट में, अमेरिका वॉज इन्वेंटेड। इन्वेंशन किस चीज का होता है? जो कि पहले से विद्यमान ना हो। हम यहाँ उल्टा हो गया, एडिसन डिस्कवर्ड द ग्रामोफोन। होना क्या था? एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, क्योंकि ग्रामोफोन था नहीं, उसका आविष्कार हुआ और अमेरिका की खोज हुई, तो खोज की जगह पर डिस्कवर्ड। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड एंड एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन। दो नेगेटिव का प्रयोग नहीं करना, जैसे दे आरंट गोइंग नोवेयर की जगह दे आरंट गोइंग एनीवेयर। He hasn't spoken to nobody की जगह he hasn't spoken to anybody. I advise you, advise is a noun, यहाँ वर्ब का प्रयोग होना था। प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है। A lady which, which जो है वो नॉन लिविंग चीज के लिए होता है। A lady who होना था। He has a PhD की जगह he is a PhD. He tried to found, to के साथ में जो वर्ब है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये लास्ट स्लाइड है। ही गेव मी फुल मार्क्स नहीं लिखिएगा कभी भी। ही गेव मी फुल मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स। द एरियर नहीं, द एरियर्स ऑफ डीए। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, आप हमें बताएं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही इज ए ऑनेस्ट मैन, इसको सही करना है। और ही इज ए एम ए, ये सेंटेंसेस गलत हैं बच्चों। आप में से कौन पहला सेंटेंस सही करेगा? ही इज ए ऑनेस्ट मैन, यहाँ गलत क्या है? क्या होना चाहिए था?
कोई भी स्टूडेंट बताएं यहाँ पर सही सेंटेंस क्या होगा? इसमें ए का प्रयोग होना चाहिए या फिर एंड का प्रयोग होना चाहिए ऑनेस्ट के साथ में? ए और एंड का प्रयोग जो है वो स्वरों के जो हमारा शब्द जो हम उसका उच्चारण है उससे निर्धारित होता है। शब्द का उच्चारण किससे हो रहा है? अ से हो रहा है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होना था कि और एन का प्रयोग होना था? एन का। हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड। ही इज AMA, यहाँ पर क्या होना था? एन होना था। हाँ वेरी गुड, गुड। चलिए, he is an honest man or he is an MA. Which one of the following sentences is correct? He gave me an advice या he gave me a piece of advice, कौन सा सही है? an advice कह सकते हैं? advice जो है वो तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम a या n लगा सकते हैं क्या? तो सही क्या होता? कौन बताएगा? He gave me an advice या he gave me मैम बी 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 वेरी गुड, हाँ सही बताया आपने। He gave me a piece of advice. Okay, very good. For the comparative comparison between more than two things, which degree of adjective is used? अगर दो से ज्यादा चीजों में तुलना करनी होती है तो फिर कौन सी डिग्री का प्रयोग होता है? पॉजिटिव का, कंपेरेटिव का या सुपरलेटिव का? दो से ज्यादा चीजों की अगर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, दो के लिए कंपेरेटिव। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव रेफर्स टू हार्डली एनी? शायद ये आपको कठिन लगे। बिल्कुल ना के बराबर अगर चीज हम बताना चाहते हैं तो फिर फ्यू का प्रयोग होगा, ए फ्यू का या फिर द फ्यू का? मैम ए का होगा, फ्यू। ए का नहीं, यही हम बता रहे थे कि इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है। ए फ्यू मतलब थोड़ा सा, फ्यू मतलब न के बराबर, ठीक है। मैम फ्यू जो फर्स्ट ए जो लिखा है ABC में से ए जो लिखा है फर्स्ट फ्यू का। अच्छा, हाँ ठीक 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 है, बिल्कुल आप सही समझ सके। फर्स्ट वाला आंसर आएगा ए। बिल्कुल ठीक है, हाँ ए। ओके ओके, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ए आंसर उसमें जो है फ्यू लिखा है वही सही आंसर है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप बहुत अच्छे से समझ सके, वेरी गुड। और एक दो और क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स? अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए कौन कौन से इसमें से तीनों में से कौन सा हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं जिस चीज को गिन नहीं सकते उसकी? मैम पहला ए लिटिल। वेरी गुड, हाँ ए बिल्कुल लिटिल इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, द एडवर्ब्स सिंस एंड फॉर आर यूज्ड इन? सिंस और फॉर का प्रयोग कौन सी टेंस में करते हैं? सिंपल में, कंटिन्यूअस में या फिर परफेक्ट में करते हैं? मैम परफेक्ट टेंसेस में इट इज यूज्ड। Since and for are used in perfect tenses and along with perfect continuous tenses. Okay, very good. Thank you. Thanks a lot.